عوامی دوروں کے ساتھ امیدواروں کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں رضا کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رپورٹرز ڈائری۔ اس پروگرام میں بطور رپورٹر میں کام کر رہا ہوں اور مقصد ہے کوئی نہ کوئی ایشو جو سوسائٹی سے متعلق ہے اور جو میری رپورٹنگ فیلڈ سے متعلق ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تو سر دست میرے سامنے یہ ایک بڑا واقعہ ہے، بڑی چیز ہے اور بڑی ایکٹیویٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیل کے لیے گوشت بیچا جا رہا ہے۔ جب آپ راوی برج پہ آتے ہیں، چاہے سگیاں برج ہو یا چاہے مین راوی برج یا پرانا راوی برج ہو، تو آپ کو بہت سے لوگ دکھائی دیتے ہیں ہاتھوں میں شاپر پکڑے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، جن میں سرخ ٹکڑے ہیں گوشت کے، جن کو رنگ کیا ہوتا ہے اور وہ صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں چیل گوشت، یعنی چیل کے لیے گوشت۔ یہ صدقے کا گوشت کہا جاتا ہے یا گوشت کے ذریعے صدقہ دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس صدقے کے اندر ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ غیر قانونی ہے۔ قانون کی نظر میں یہ خرابی ہے، یہ قانون شکنی ہے، لہٰذا حکومت اور محکمے خاص طور پر میونسپل لاز کو جو امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ ایکشن لیتے ہیں اس کے خلاف، اور پھر یہ ایکشن بعض دفعہ انتہائی سخت بھی ہوتا ہے، پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، اور پھر یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں چیل گوشت یا چیل کے لیے گوشت فروخت کرنے والے، یہ سلاخوں کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور پھر پرچے اور پھر سب کچھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلے ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے اس آج کا سینوپسس بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر یہ سرگرمی کیوں ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ کتنی خراب ہے اور ماحولیاتی آلودگی کا باعث کس طرح سے بن رہی ہے، اور ساتھ ساتھ برڈ ایکولوجی کو کس طرح سے متاثر کر رہی ہے۔ یہاں سے ہوتے ہوئے ہم نہر کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ نہر پہ بھی شہر کے اندر بیچوں بیچ جو پاش علاقہ ہے لاہور کا، اس میں بھی یہی سرگرمی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف چوراہوں پہ بھی کچھ عرصہ پہلے تک گورنر ہاؤس کے پاس بھی یہی تھی۔ جی، اس وقت ہم سگیاں برج پہ موجود ہیں اور یہ سب سے بڑا ہب کہہ سکتے ہیں یہ چیل گوشت یا چیل کے لیے گوشت بیچنے والوں کا۔ آئیے اس بندے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتنا کما لیتا ہے اور اسے کیا معلوم ہے کہ یہ واقعی نقصان دہ اور غیر قانونی بھی ہے۔ تہاڈا نام کی ہے جی؟ بابا یونس ہے۔ بابا یونس ایک کدوں تو بیچن ڈیا ہے، کی کام کرن ڈیا؟ تقریباً 2 مہینے 2.5 مہینے کپار پہ آ رہے ہیں۔ اج میں تے 2 بچیاں میریاں کرایہ دا مکان ہے، کدی 400 کدی 500۔ اچھا، تے اے کنے دا ایک لفافہ دے رہے ہیں؟ 10 روپے دا کوئی، میرا مطلب ہے کہ آ جاندے نے وچ 100 دے 12 دے دیو، ہاں 15 دے دیو، تے پھر ہی دے دیو۔ اچھا، تے اے سارا گوشت رنگ کیتا ہوا ہے؟ ہاں، میٹھا رنگ لگا، اچھا، واش کر کے نہ دھو کے ہاں، صاف کر کے پھر میٹھا رنگ لاندے نے، جانور کھاندا ہے انہوں فرق نہیں پیندا، جتنا مرضی کھا لے۔ کوئی مزدوری کوئی کچھ اور کام ہی نہیں آتا، صرف یہی رہ گیا ہے؟ کر ہی ہو سکنے ہیں۔ پہلے کی کام کرتے سو اس کو؟ اس تو پہلے میں فیکٹری کا کام کردا۔ پولیس تانوں بھی پھڑیا سی اتنے؟ آ 2 دفعہ پھڑیا ہے چوکی والے۔ اچھا، تو کی کہندے کی سن؟ کچھ بھی نہیں، میرا مطلب ہے کہ پھر مگروں حج شوقا گیا تے وہ لے آیا کہ مزدور بندے کی کہنا ہے۔ اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ ایک خریدار بھی ہیں اور وہ بھی نوجوان ہے، لیکن ابھی یہ نہیں جانتا کہ یہ غیر قانونی ہے یا قانون ہے۔ اس حوالے سے صفائی کے حوالے سے بھی، اور خاص طور اسکیونجرز کے حوالے سے بھی، اور مینٹیننس آف میونسپل لاز کے حوالے سے بھی، اور سب قوانین موجود ہیں۔ یہ ان سے تھوڑا پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بتاتے ہیں ہمیں۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بلال اچھا، محمد بلال، آپ تھوڑا بتائیں کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں آپ نے؟ سر، یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ یہ ہم اپنا صدقہ دے رہے ہیں، اپنی طرف سے اپنا صدقہ دے رہے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے، اس کی یہ کریں۔ اچھا، تو اس کے نقصان کا پتہ ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ نقصان کا سر، نقصان کو یعنی جب یہ پرندہ اس کی تعداد بڑھتی ہے تو چھوٹے پرندے ختم ہو جاتے ہیں، یہ تو ہے۔ کیونکہ یہ گوشت خور پرندہ ہے جی سر، اور ان کے انڈے وغیرہ کھا جاتا ہے سب کچھ، اور قانون بھی موجود ہے۔ جی جی۔ کیا اس کے بارے میں پہلے جانتے تھے یا نہیں جانتے؟ نو نہیں جانتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدقہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ صدقہ ہونا چاہیے جیسے کسی غریب کو دینا چاہیے، گھر والوں کو دینا چاہیے جن کے پاس کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں ہے۔ یہ پرندے ہیں، یہ بھی اچھی چیز ہے، مگر
उतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी इनके बारे में अच्छा, क्या आप कि समझते ये हैं कि गलत अब इंशाल्लाह ताला के आगे से केयर करेंगे और अच्छा करेंगे इंशाल्लाह ताला। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਫੜਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੱਟ ਗੱਡੀ ਆ ਤੇ ਵਗ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ 100-2.5 ਬਣਾਇਆ ਵਗ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਬਾਰ है। अच्छा, जिस तरफ ये बता रहे हैं बाबा जबार कि ये थोड़ी देर के लिए आते हैं, मजबूर हैं, सांस की इन्हें बीमारी है। अब मसला ये है कि जिनमें से अक्सरियत जो जानबूझकर या ना जानते हुए भी इस तरह की कानून शिकनी में मुलव्वस हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हैं जो वो बताते हैं, ख़ासतौर मौसी मजबूरियां, कहीं ना कहीं घरों में या उन्हें घर को सपोर्ट करना है, बच्चियों की शादी करनी है या इस तरह के मामलात इनको दरपेश हैं। और हुकूमत अगर इस तरफ भी तवज्जो दे और इनके मसाइल हल करने में मदद दे, इनको मुतबादिल रोज़गार मुहैया करने में मदद दे, तो फिर बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, की हाल ने बाबा जी? ठीक हो? ये काम गैर कानूनी है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ अच्छा, लेकिन ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ अच्छा, लेकिन ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਰਟ ਕੰਮ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਗੋਸ਼ਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰ ਕਿਸ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਹੂੰ, ਸਟੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ किस बात के? ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੇਚਦੇ नहीं तो कोई और काम नहीं होता क्या? और काम नहीं होता ना, ऑपरेशन के मरीज में। अच्छा, और काम होते छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों का ब्याह करना है, हाँ हाँ ये मजबूरी है हमारी। हाँ, तो ये छापे जब मुतवातर हो रहे हैं तो फिर फ़ायदा तो कोई ना हुआ, इनकम तो कोई ना हुआ। करें बच्चों के लिए करना तो पड़ता है, हाँ। क्या करें। नहीं, एक चीज़ ही गैर कानूनी है, मतलब ये तो देखें आप ना। ये तो देखो ये हलाल माल का जानवर का है, हाँ। फेफड़ा लेकिन वो ये सदका है। वो जब सड़क पे गिरता है उस वक्त मसले पैदा होते हैं। सड़क पे तो हम गिरने नहीं देते, अच्छा दरिया में देते हैं। अच्छा, अच्छा, तो ये पता है गैर कानूनी लोग पुलिस वाले फिर फड़ना भी शुरू कर देंगे ने। ਆਹੋ ਫੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਦੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਚੱਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਲੋਲ ਹੋਵੇ ਦੀ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਦਾ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ? ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤਨਾ ਮਾਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਐਲਡੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਮਾਲ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਲਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦੇਂਦੇ, ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ? ਖਰਚਾ ਇਹ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਜੜ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਚ ਜਿਣਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਰ ਉਜੜੀ ਯਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਿਆਗਾ ਧੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਂਦੇ ਆ ਧੀ ਬਦਲੇ ਧੀਆਂ ਬਦਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। अच्छा, तो आप ये बताएं ये कब से इरफान ये काम कर रहे हैं? इससे पहले क्या करते थे आप? ये तो 3-4 साल से आप इधर नज़र आ रहे हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा। इससे पहले क्या करते? ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਆਇਆ ਘੁੰਮਣ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਗਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ कौन सी फैक्ट्री? ਗਾਰਮੈਂਟ ਰੋਜ਼ਰੀ जी अपने पुराने बिजनेस से नहीं जा सकते इसमें छड़ के? ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂਦੇ किस ਕਈਆਂ तरह ਨਹੀਂ फैक्ट्रियां ਪਾਸੇ बंद? ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ चल भी तो रहे हैं हाँ। नहीं तो इसमें क्या मुनाफा है? अच्छा हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इकदाम भी करें। जी चील गोश्त और इस तरह की सरगर्मियाँ जो लाहौर के मुख्तलिफ़ मकामात पर हम देखते हैं, ख़ास तौर पर नहर पर या गवर्नर हाउस के पीछे या दरियाए रावी के मुख्तलिफ़ पुलों पर हम देखते हैं कि बच्चे जवान मुख्तलिफ़ शॉपर्स हाथ में पकड़े होते हैं जिनमें रंग लगा गोश्त होता है और फिर वो गोश्त जो है ख़रीदार ख़रीदते हैं और उसे सदका समझ कर अपने सरों पर से वारते हैं, एक तरह घुमाते हैं, चक्कर लगाते हैं और फिर दरिया में या नहर के किनारे फेंक देते हैं। यहाँ पे चीले कौवे और इस तरह के परिंदे जो एक तरह से गोश्त खोर बन चुके हैं वो वहाँ होते हैं और फिर वो कौवे और चीलें झपटते हैं उस गोश्त पे और इस तरीके से हमला करते हैं नीचे ज़मीन की तरफ कि बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ़ हादसात भी हो जाते हैं और हादसात बाज़ दफ़ा इंतहाई ख़तरनाक भी होते हैं। बहुत से लोगों के साथ ये वाक़यात दरपेश हुए होंगे और उन वाक़यात की वजह से उन्हें नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन इस वक्त हमने उस पहलू पर जिसके लिए ये दिया जाता है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि ये खैरात है या सदका है, और सदका के बारे में यही है कि सदका रद्दुल बला है या बला को टालता है, मुसीबत को कम करता है, लेकिन क्या ये सदका है? इस हवाले से हम जानने के लिए यहाँ जामिया नईमिया में पहुँचे हैं जहाँ पे डॉक्टर रागिब नईमी हमारे मुमताज़ आलिम दीन हैं। वो बताएंगे हमें इस हवाले से कि इसके क्या असरात हैं और क्या ये सदक़े की रूह के साथ मैच भी करता है या कि और कोई सजेशन देंगे लोगों को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को जो सदका खैरात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर इस हवाले से हमें बताइए कि ये अब एक सीन बन चुका है लाहौर का, मुख्तलिफ़ चौराहों पर, ख़ास तौर पर नहर के किनारे या दीगर इलाकों में दरिया के किनारे आप देखते हैं, पुलों पे, रावी ब्रिज पे आप देखते हैं कि ये लोग खड़े होते हैं, बच्चे बच्चियाँ हाथों में शॉपर्स होते हैं, छोटे छोटे शॉपिंग बैग्स होते हैं जिनमें गोश्त के चंद टुकड़े होते हैं जो बज़ाहिर यही लगता है, दिखाया यही जा रहा होता है कि ये ताज़ा है, लेकिन करीब जाएँ तो इंतहाई बदबूदार होता है। तो आप इस हवाले से कुछ बताएं कि क्या स्पिरिट है इसकी और क्या ये आगे हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका यकीनी तौर पर किसी भी इंसान पे आने वाली तकलीफ़ और मसाइब को दूर करता है, और जो तलीमात हमें सदक़े के हवाले से मिलती हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि सदका जिसे दिया जाए वो उसकी ज़रूरियात को पूरा करने वाला हो। मैं ये समझता हूँ कि जो सूरत हाल सदका देने की ख़ास तौर पे चील गोश्त के हवाले से इस वक्त बनती हुई नज़र आ रही है, उसमें बहुत सी कबाहतें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आम सड़कों के ऊपर और बड़ी अहम सड़कों के ऊपर ये फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पे चलने वाली ट्रैफिक को बहुत मुश्किलात का सामना करना है। गोया एक तरफ चील गोश्त बेचने वाले अपनी दानिश में सदक़े का गोश्त बेच रहे हैं और ख़रीदने वाले सदक़े का गोश्त ख़रीद रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो बहुत से उन लोगों के चलने के अंदर और उनकी ट्रैफिक में रुकावट का बायस बन रहे हैं जो दूसरी तरफ लोगों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। हमें तलीमात जो सदक़े के हवाले से मिलती हैं उसका बुनियादी मकसद ये है कि हमने सदका इसलिए देना है कि हमारी तकलीफ़ और मसाइब दूर हो जाएँ, लेकिन उसके साथ साथ हमें उन लोगों तक पहुंचाना है जिन्हें वाक़तन सदक़े की ज़रूरत भी है। बेशक अल्लाह ताला ने हर जानदार के जो रिस्क है उसका ज़िम्मा अपने ऊपर लिया हुआ है, और ख़ास तौर पे जितने भी जानदार जो परिंदों की सूरत में हैं या वहशी जानवरों की सूरत में हैं, ये अल्लाह ताला इनको रिस्क अता फ़रमाता है। लेकिन जो सदक़े का मफ़हूम है उसमें ख़ास तौर पर जो इंसानों को सदका दे, इंसानों को अपना माल पहुँचाए, जिन्हें बसा औक़ात बड़ा मुश्किल हो जाता है दुनिया में सर्वाइव करना। तो हमें हकीकत में ऐसे लोगों की तलाश करना है कि जिन्हें हम अपने माल से फ़ायदा पहुँचाएँ और जिसके नतीजे में वो नहायत आसानी के साथ अपनी ज़िंदगियों को गुजारने के काबिल हो जाएँ। इस पूरी कैफियत में जो आजकल हमारे सामने, मैं समझता हूँ कि हमें इस तरफ अपनी रकम को ज़ाया करने की बजाय हमें कोई और तरीके और कोई और रास्ते तलाश करने चाहिए। और यहाँ पे फिर एक और चीज़ और भी है,
इससे हमारी साल पसंदी का पता लगता है, और जिस कैफियत में इस सदक़े को वारा जाता है उसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। असल में तो बात है दिल की नीयत की। जिस तरीके से वो एक आधा पाव गोश्त सर के ऊपर से 7 दफ़ा फेरा जाता है, ये सारा का सारा एक नॉनसेंस कैफियत है, और मैं समझता हूँ कि ये हिंदू माशरे से अडॉप्ट करता हुआ एक अमल है जो हम अपने माशरे में कर रहे हैं। हमें इससे एहतराज़ करने की ज़रूरत है। असल चीज़ ये है कि आप दिल में नीयत करें कि हमने अपने माल का या अपनी जंग का सदका देना है, और सदका जिस आदमी को आप देना चाहते हैं उसकी ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर रागिब नईमी साहब बता रहे हैं हमें कि सदका देते वक्त हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे किसी भी अमल से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचता हो, और अगर वो नुकसान पहुंच रहा है और सोसाइटी को इस ख़ास तौर पर इस अमल में जो चील गोश्त का अमल है, इसमें पूरी सोसाइटी अगर डिस्टर्ब होती है, या वो ट्रैफिक पे जो जिन रोड्स पे चलती है वो ट्रैफिक का अगर बहाव तातुल का शिकार होता है, या वहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं, तो फिर ये सदका एक तरह से गुनाह का बायस भी बन सकता है, या इसका वो प्रोडक्टिव पहलू या जो इंसानी फलाह का पहलू है वो ख़त्म हो जाता है, और बल्कि इसकी जगह नुकसान का पहलू सामने आ जाता है। जी, चील गोश्त एक माहौलियाती मसला भी है, मुआशरती भी है, और साथ साथ मजहबी इशू भी है। इस वक्त हम इसके माहौलियाती पहलू के हवाले से पहुँचे हैं जानने के लिए महकमा माहौलियात के दफ्तर में, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल जो DG महकमा माहौलियात हैं। इनसे पूछेंगे कि ये क्या मसला है और कौन सा लॉ अप्लाई होता है, और ख़ास तौर पर लोकल लेवल पे या निचली सतह पे इस लॉ को अप्लाई करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए, या माशरे को ख़ास तौर पर इसके हैज़र्डस इम्पैक्ट से बचाने के लिए क्या किरदार अदा किया जा सकता है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, थोड़ा बताइए इसके हवाले से कि क्या ये माहौलियाती या इशू तो है, लेकिन क्या ये सूबाई सतह का है या फिर ये एक निचली सतह पे इसे टैकल किया जा सकता है? मेरा ख्याल ये ज़िली हुकूमत लेवल का एक मसला है जो लाहौर में हम ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और देख रहे हैं, और लोग फेस भी कर रहे हैं, जैसे आपने अपने इंटरव्यू में बताया सारी बातें। उसमें यह है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत ये चीज़ें हैंडल होती हैं। हमारा भी, क्योंकि अभी तक महकमा डिवॉल्व है, हमारा DO भी काम करता है, और जिसके साथ हमने उसका भी वो भी ज़िली हुकूमत के साथ मिलके इसमें कंट्रोल में जो अपना किरदार है वो अदा करे। लेकिन ये ज़्यादा मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस का इशू है कि लोगों को बताया जाए कि अगर उन्हें सदका खैरात करनी है तो उसके लिए बेहतर है किसी गरीब आदमी को चीज़ दें, ना कि वो सड़क पे फेंकें या नहर के किनारे फेंकें, फिर वो चील कौवे आएँ और ट्रैफिक के इशू पैदा हों, लोगों के लिए वो मसले का बायस हों। तो इससे बेहतर है ऐसे नकदम यह किताब में होगा कि लोग गरीब आदमियों को वो सदका दें। सर, ये एक इस लिहाज से भी हाजिर है कि ये फिर बाद में इंसानों पे हमले भी कर देती हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह मैं अपने वाक़े के बारे में आपको बताया है, और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जब वो नीचे डाइव करती हैं चीलें। तो एक तरह से ट्रैफिक का मामला भी इन्वॉल्व होता है, इरिगेशन का, जिस तरह आपसे डिस्कशन हो रही थी कि इरिगेशन वाले उन्हें भी अपनी चीज़ें और अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी आप शहरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? पहली बात तो कि ये जो आपने लास्ट में जो बात की मैं उसको पहले कहता हूँ, देखिए फेंकने वाले कौन हैं? शहरी, हम लोग खुद हैं। ये अवेयरनेस आपका मीडिया, ये बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम, ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक कदम है इस तरफ कि अवेयरनेस की तरफ कि ये लोगों को रियलाइज़ हो गया वो गोश्त फेंक के जा रहे हैं तो किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके जा रहे हैं। और उसके लिए ये है कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की है कि हमारा डिपार्टमेंट भी अवेयरनेस हद तक उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। DO को भी कहा है कि वो बाकी महकमों के साथ मिलके इरिगेशन का, क्योंकि चैनल होता है, वो भी अपने लोगों को वहाँ पे इश्तिहार लगाएं कि जैसे उन्होंने नहर पे कई दफ़ा होता है नहाना मना है, सारी चीज़ें, और ये भी होना चाहिए साथ साथ कि यहाँ पे कच्चा गोश्त जो कि एक है नहीं कि इस मकसद के लिए नहर और या दरिया कि उसमें कच्चा गोश्त फेंका जाए, फिर चीले कौवे हैं और लोगों के लिए मसाइल पैदा करें। तो सर क्या हल होना चाहिए ये सदक़े की? आप क्या समझते हैं, आपकी आप बहैसियत मतलब शहरी, आप क्या समझते हैं? मैं तो फिर शहरियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सदक़े का गोश्त किसी गरीब को दें, ये ज़्यादा एहसन काम होगा। तो लॉ वैसे कौन सा अप्लाई होता है इस पर? ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, जो लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट, ये देखें ना, इशू ये आता है कि लोगों के लिए मसला पैदा होता है, तो उसके लिए लोकल गवर्नमेंट एक्ट में प्रोविजंस हैं
جو کہ میرے خیال میں ہم نے اپنے ڈی او سے بھی بات کی ہے کہ وہ متعلقہ جو دوسرے اس کے ہیں ساتھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں ان کے ساتھ مل کے اس کو امپلیمنٹ بھی کروایا جائے. تھینک یو. ہنگامی دوروں کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیل کے لیے گوشت ہے، چیل گوشت نہیں، یعنی چیل کا گوشت نہیں. اور مذہبی علماء تو یہی کہتے ہیں کہ یہ صدقہ نہیں، نہ ہی صدقے کی روح جو ہے اس کے ساتھ کوئی مناسبت رکھتی ہے. جہاں تک بات ہے اس کا انوائرمنٹل اسپیکٹ یا ماحولیاتی پہلو، تو اس کی سب سے بڑی ایک چیز یہ ہے کہ ہیزرڈس کریٹ ہوتے ہیں. اور وہ ہیزرڈس کس قسم کے ہوتے ہیں، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ خان صاحبہ، اور یہ ڈائریکٹر ہیں اسپیشیز کی اور WWF پاکستان میں، اور یہ کافی عرصے سے ماحولیاتی آلودگی اور خاص طور پر ان اسپیشیز کی پروٹیکشن کے لیے جو انڈینجرڈ ہیں ان کے لیے کام کر رہی ہیں. تو عظمیٰ صاحب تھوڑا بتائیے اس حوالے سے، یہ اتنا بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے، تھا نہیں لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر روڈ پہ کہیں نہ کہیں کوئی روزگار کی تلاش میں یہاں آ جاتا ہے اور پھر یہ چیل کے لیے گوشت بیچنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہی باٹل نیک بن جاتا ہے ٹریفک کے حوالے سے. دیکھیں جی، سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ جو کائٹس ہیں، جو چیلیں ہیں، وہ ہیومن پاپولیشن سے بڑی کلوزلی ایسوسیٹ ہوتی ہے. اس میں ایک جو آپ نے کہا کہ لوگ صدقے کا گوشت بانٹتے ہیں، وہ ایک آبویسلی فیکٹر ہے جو کہ ان کو فوڈ سپلائی کرے. اور کسی بھی جانور کے لیے جہاں فوڈ سورس ہوگا وہ وہاں پہ آئے گا. اور جو اگر ہم بائیولوجیکل سائڈ پہ دیکھیں کہ کیا ان کا امپیکٹ ہو رہا ہے، وہ سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے ان کی تعداد شہروں کی طرف بڑھ رہی ہے، کیونکہ خوراک بہت زیادہ میسر ان کو ہو رہی ہے، وہ ایک تھریٹ بن رہے ہیں، بیکاز یہ پریڈیٹرز ہیں، یہ شکاری جانور ہیں. تو اپارٹ فرام کہ وہ اسکیونجنگ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ایک شکاری جانور ہے بیسیکلی جو کائٹ ہے. تو وہ جو ہماری باقی پرندے ہیں، باقی جو جنگلی حیات ہے جو چھوٹی، جیسے اسکوئرلز اس میں شامل ہیں، یا اور گرین پیجنز ہیں، یا وہ ہارن بل ہیں، اس قسم کے جو پرندے اور جانور ہیں ان کا بھی شکار کر سکتے ہیں. تو اب وہ پرندے ہمیں کم نظر آتے ہیں، اور ہمیں شہر میں اب کائٹس اور کروز نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ یہ دونوں وہ اسپیشیز ہیں جو کہ ہیومن پاپولیشن سے بہت زیادہ بینیفٹ کرتی ہیں. اس طرح سے اوپن ایئر یعنی یہ پھینک دینا، یہ ایک طرح کا اور انوائرمنٹل ہیزرڈ بھی ہے، بدبو بھی ہے، اسمیل بھی ہے، اور چاہے وہ ڈمپنگ کر رہے ہوں یا چاہے ادروائز، یہ تو ایک صدقہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا. مطلب آئی تھنک ریلیجس تھوڑی سی اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. آئی تھنک پاکستان میں بڑے معصوم لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس ریلیجس ایلیمنٹ سے ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں، لیکن وہ جو اپنے، کیونکہ اسلام میں تو یہ بھی ہے کہ آپ پھر کسی کو نقصان پہنچانا، کسی اور جانور کو تکلیف دینا، وہ بھی اسلام کے خلاف ہے. تو اگر ہمارے ایک ایکٹ سے اگر ہم گریٹر بایو ڈائیورسٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اسلامکلی کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے. اچھا، ایک اور فیکٹر بھی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ آپ کے کس طریقے سے اس کو آپ ایکسپلین کریں گے کہ یہ انسانوں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں. دو فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جانور جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہیبیچویشن، جانور یوز ٹو ہو جاتا ہے کسی چیز کا. اگر وہ انسان کا اتنا یوز ٹو ہو گیا ہے اس کی پریزنس کا، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اس کا جو ایک ڈر ہے انسان کے لیے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس میں یہ اٹیکس ہوتے ہیں. دوسرا چیز یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. یہ چیز کروز میں بھی ہے کہ وہ ان کا ایک جو علاقہ ہے وہ اس کی آپ کے لیے حد بندی کر رہے ہیں یا اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس میں وہ اس طرح کا بیہیویئر شو کرتے ہیں. اگر وہ اس وقت بریڈنگ سیزن ہے تو وہ اٹیک زیادہ ہوں گے. اگر ان کے اوپر نیسٹ ہے جس میں چکس ہیں تو اس قسم کا بیہیویئر زیادہ ہوگا. تو اس طرح کے فیکٹرز ہیں. اور آبویسلی اگر آپ کے لوگوں اور جانوروں میں وہ جو ایک ڈسٹنس ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو اس طرح کی بالکل چیزیں ہو سکتی ہیں. حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ ایک تو یہ کہ لوگ صدقے کے لیے کرتے ہیں، گورنمنٹ قانون ہے، میونسپل لاز بھی ہیں، وہ ایکٹیو نہیں ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حل ہونا چاہیے؟ میرے خیال سے اویئرنیس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. جیسے آپ یہ اب پروگرام کر رہے ہیں اور اس میں اگر آپ ریلیجس ایک ویو بھی دے رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ایک اویئرنیس کا ایلیمنٹ ہے، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا، وہ اپنی طرف سے تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آئی تھنک کچھ حد تک ہمیں جس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو لوگ اس پیشے میں انوالو ہو رہے ہیں، اوبویسلی وہ
पैसे कमाने के लिए हो रहे हैं ना, वो किसी शौक से तो नहीं हो रहे। तो उनको क्या हम कोई और मौके प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो इस काम से हट के कोई और करें, कि इसमें वो असेसमेंट करने की ज़रूरत है कि कितना वो पैसा कमा लेते हैं, तो उनको हम क्या ऑल्टरनेट इसका दिया जा सकता है। इस तरह से बात हुई है उज़मा खान साहिबा के साथ कि हमें साथ साथ जो डंपिंग साइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना होगा, कि सिर्फ ये सदक़े के गोश्त पर ही नहीं पलती ये चीलें, बल्कि साथ साथ जिस तरीके से हम अपना वेस्ट मैनेज करते हैं, ओपन साइट्स पे रख देते हैं, या फिर वो जो डंप्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को म्यूनसिपल लॉज को तो एक्टिवेट करना ही है, अपना किबला भी दुरुस्त करना होगा इस हवाले से, और बेहतर सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि बेहतर से बेहतर इंतज़ामात हों, सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बल्कि हमें माहौल को बेहतर करना है, तभी हम एक अच्छे शहरी साबित हो सकते हैं। सर थोड़ा बताइए इस हवाले से कि ये जो चील के लिए गोश्त या सदक़े का गोश्त आजकल ये पिछले चंद सालों से ये काफ़ी मोमेंटम गेन कर गया, और क्या कानून है और किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है? मैं तो जी इसको सदक़े के गोश्त के हवाले से नहीं देखता। मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि सदक़े की ये किस्म जो है इसकी इस्लाम में इजाज़त है या नहीं है। हम इसको 2-3 डिफरेंट एंगल्स से देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये हमारी सड़कों के ऊपर बहुत बड़ी न्यूसेंस है, इसकी वजह से ट्रैफिक के हादसात होते हैं, इसकी वजह से आपको ये भी नहीं पता कि ये कौन सा गोश्त है, किस चीज़ का गोश्त है जो ये सड़क के किनारे खड़े होकर बेचते हैं, और उस गोश्त में क्या बीमारियां मौजूद हैं। हमारे लिए तो ये इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं और ट्रैफिक कंजेशन के इश्यूज़ हैं, सेफ्टी के इश्यूज़ हैं, जिनको लेके हमने अपना जो मौजूदा हमारे कवानीन हैं, म्यूनसिपल लॉज हैं, उनके मुताबिक इनके ऊपर क्रैक डाउन स्टार्ट किया है। और पिछले तकरीबन 20-25 दिनों में अब तक तकरीबन एक ऑपरेशन के तहत एक जो पूरे शहर में लॉन्च किया गया, उसमें तकरीबन 60 से ज़ायद लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। और ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, बिकॉज हम एक जगह से पकड़ते हैं। ये बेसिकली गरीब लोग हैं। मकसद किसी भी एक्शन का ये नहीं होता कि हमने अपनी जेलें भरनी होती हैं। मकसद ये होता है कि हम लोगों को ये बताएं कि ये गलत काम है और वो ना करें। लेकिन गाय बगाए देखने में ये आया है कि ये एक दफ़ा आप इनको पकड़ लें, फिर ये छूट जाते हैं, तो फिर दोबारा भी ये आ जाते हैं। तो हम इनके ख़िलाफ़ बहरहाल जो सख्ती है वो कायम किए हुए हैं, और जो मेजर शहर की सड़कें हैं जहाँ पे ट्रैफिक के हादसात ख़ास तौर पर हो रहे थे, वहाँ से तो हम इनको टोटली एलिमिनेट करने में कामयाब हो गए। अभी भी कहीं ना कहीं अंदर से किसी मोहल्ले से कहीं ना कहीं से शिकायत हमें आती है, तो वहाँ पर भी हम अपनी टाउन्स की टीम्स को भेज के ऑपरेशन कराते हैं। सर अंडर व्हाट लॉ, यानी एनवायरमेंट लॉ या कोई म्यूनसिपल लॉ दूसरे जो है? हमारा जो PLGO है उसके अंदर कैटेगोरिकली ऐसी चीज़ों की ममानियत है जो हमारी इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह हो। मैं ये समझता हूँ कि ये जो गोश्त है, ये गोश्त की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि ये किस चीज़ का गोश्त है, और ये गोश्त तो होता भी नहीं है। ये गालिबन छीछड़े होते हैं, या ज़ाया किया हुआ गोश्त होता है, या मुर्दार जानवरों का गोश्त होता है। इसके थ्रू शहर में बेतहाशा बीमारियां फैल सकती हैं, जो बीमारियां फिर जानवरों से इंसानों में भी ट्रेवल कर सकती हैं। वही गोश्त सड़क के किनारे पड़ा हुआ आप अगर पड़ा हुआ चीलें नहीं खाएंगी तो वो हो सकता है कुत्ते भी खाएंगे, तो ये बीमारियां इवेंचुअली, और वो कुत्ता अगर फिर किसी इंसान को काट लेगा तो बीमारी उसमें ट्रेवल हो सकती है। तो हमें तो इस गोश्त की या ये जो भी चीज़ फेंकते हैं उसका सोर्स भी मालूम नहीं है। तो ये हमने अपनी पब्लिक सेफ्टी इश्यूज़ की जो प्रोविजंस है उनको इन्वोक करके इन पे पाबंदी जो है वो लगाई हुई है, और ये ऑलरेडी पाबंदी मौजूद थी। इन दिनों में इनके ऊपर एक्शन ज़्यादा किया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के हादसात होने शुरू हो गए थे। जहाँ पर ये गोश्त फेंकते थे वहाँ पे चूँकि चीलें डाइव मार के वो गोश्त उठाती थी, तो कहीं को मोटरसाइकिल वाला अपनी जान बचाने के लिए या अपने आप को चील से बचाने के लिए आगे पीछे मुड़ता था, किसी गाड़ी में टकरा जाता था, या कहीं गाड़ी वाले के किसी शीशे पे आके ये चील लग जाती थी, कहीं पैदल गुजरने वाले को वो चीलें अटैक करती थी। तो ये इश्यूज़ थे जिनको लेके। और फिर आप ये भी देखें कि जब सड़क के किनारे खड़े होकर जब ये काम करते हैं, तो सड़क पे जब मैं और आप गुजरते हैं या कोई और गाड़ी वाला गुजरता है, तो उस के गाड़ी रोक के ये ट्रांजैक्शन करने की वजह से उस वक्त ट्रैफिक भी जो है वो बंद हो जाती है। और साथ साथ सर ये बदबू दूर तक फैली होती है। जी, ना सिर्फ ये इन्वायरमेंटली बुरे हैं, बल्कि इनके जो ताफुन है, आपने खुद ठीक आइडेंटिफाई किया, इसका ताफुन जो है वो भी प्रेमिसेस के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूसेंस पैदा करता है। और यकीनन वो बदबू जो है वो कोई जरासीम की वजह से होती है, जिसकी वजह से और भी जो है वो ख़तरात लाहक हो सकते हैं जो उस इलाके के मकीन है उनको।
सर ये पॉवर्टी ड्रिवन है ज़्यादातर एक्टिविटी या इट हैज़? मेरा ये ख्याल नहीं है ये पॉवर्टी ड्रिवन है। देखिए गुर्बत आपको नाजायज़ काम करने पे मजबूर नहीं करती। आपने बहुत सारे गरीब लोग देखे होंगे जो जायज़ तरीके से, अच्छे तरीके से, ऑनरेबल तरीके से अपना रोज़गार कमाते हो। ये अपॉर्चुनिटी ड्रिवन है, ये डिमांड ड्रिवन है। अचानक नज़र आया कि लोगों का ये वाला सदका देने पे रुझान ज़्यादा हो गया तो सड़क के किनारे ये चिचड़े लेके खड़े हो गए। मेरा ख्याल है इसका गुर्बत से ताल्लुक़ नहीं है। अच्छे काम और हैं माशरे में करने वाले जिनको किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि इसका बिल्कुल सर अक्सर मैंने अभी ऑब्जर्व कर रहे थे कि ऐसे पढ़े लिखे बायर्स भी हैं जो मतलब अपने सर से घुमा रहे होते हैं कुछ इस तरह की एक्टिविटी। आई डोंट नो, देखें जी हर किसी के अकीदे की बात है। मेरा ये ख्याल है कि मैं शायद उस मामले में एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं अपनी ज़ात की हद तक तो बता सकता हूँ आपको कि मेरा क्या ख्याल है इस बारे में, लेकिन किसी भी शख्स का जो ईमान या एतकाद या रिलीजन के बारे में जो उसका झुकाव है उसके बारे में मेरा ख्याल है हमारे उलमा को थोड़ा ज़्यादा बेहतर हमारी सोसाइटी को गाइड करना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि सदका तो शायद गरीबों को दिया जाता है, इंसानों को दिया जाता है। ये ऐसे जानवरों को जो मुर्दार जानवर हो उनको पता नहीं कौन सा सदका लगता है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, मैं किसी के जज्बात मजरूह नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस पर किसी आलिम से, किसी स्कॉलर से आपको ज़रूर पूछना चाहिए। सर ये बर्ड इकोलॉजी तो अच्छी खासी मुतासर कर रहा है। बेतहाशा जी, बहुत बेतहाशा। एक तो वैसे भी ट्रैफिक की कंजेशन की वजह से, धुएं की वजह से, सड़कों पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुजरने की वजह से जो हमारी बर्ड्स हैं उनकी जो आमाज गायें हैं वो शहर में कम होती जा रही हैं। फिर जब उन मेजर सड़कों के ऊपर अगर आप ये इस तरह गोश्त फेंकना शुरू कर दें और वहाँ पे फिर चीलों का आना शुरू हो जाए तो इवेंचुअली वो जो छोटा परिंदा है उसने तो वहाँ पे नहीं आना। तो ऑफ कोर्स वो भी है, लेकिन मैंने जिस तरह आपको बताया हमारे लिए मेजर कंसर्न्स जो थे वो सेफ्टी के थे, वो हेल्थ के थे, वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के थे, जिनकी वजह से हमने ये पाबंदी लगाई। नाजरीन, आज की इस रिपोर्टर्स डायरी को अगर सम अप करें तो 3-4 पॉइंट सामने आ जाते हैं और उनमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये कानून मौजूद है, म्यूनसिपल लॉज मौजूद हैं। इस हवाले से चील के लिए जो गोश्त दिया जाता है इंतहाई नाजायज़ है और गैर कानूनी सरगर्मी है। इसके लिए हुकूमत तो अपना किरदार अदा करती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी पकड़ धकड़ करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये इकनॉमी या मुआशी ड्रिवन है या मसले का शिकार लोग हैं या गुर्बत का शिकार हैं, वो मजबूरन ये काम करते हैं। उस काम के लिए ख़ास तौर पर इनको मुतबादल काम भी चाहिए ताकि ये बुरा काम, जो गैर कानूनी काम है, इसको वो छोड़ जाएं। दूसरा बताने की ज़रूरत यह है नाजरीन को भी, जो सदक़े का गोश्त ख़रीदते हैं सबसे पहले उनके लिए ज़रूरी है कि वो ये देखें कि सदक़े का कोई अमल या कोई अच्छा अमल जो करने जा रहे हैं अगर उसका नतीजा गलत है या उससे गलत असरात मुरतब हो रहे हैं तो वो काम नहीं करना चाहिए। मजहबी उलमा, ख़ास तौर पर डॉक्टर राग़िब नईमी का जो बयान इस हवाले से वो आपने सुना और देखा भी, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आप सदका देना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप इंसानों को दें। ऐसे जानवरों या ऐसे जानवरों और परिंदों के लिए सदका जायज़ नहीं है जो ख़ुद गोश्त खोर हैं और शिकार कर सकते हैं। चीलों के बारे में यही बात है कि ये शिकार कर सकती हैं, लिहाजा इनका गोश्त जायज़ नहीं है, इनको बांटना, इनके आगे फेंकना गोश्त जायज़ नहीं है। अगर माहौलियाती हवाले से देखा जाए तो सबसे बड़ा मसला माहौलियाती ये है कि बर्ड इकोलॉजी को मुतासर करता है। परिंदों की एक अपनी तरतीब और अफजाइश होती है, छोटे परिंदे भी होते हैं, बड़े परिंदे भी होते हैं, और अगर इनका तवाज़ुन बिगड़ जाए, तादाद बढ़ जाए, किसी एक परिंदे की, बड़े परिंदे की बढ़ जाए तो छोटे परिंदों का वजूद इंतहाई ख़तरनाक या मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें एहतियात करनी चाहिए और फिर ये एक्सीडेंट्स का बायस भी बनता है और बीमारियों का बायस भी बन सकता है और साथ ही साथ माहौलियाती आलूदगी का बायस तो ये है ही और गैर कानूनी भी है, इसलिए इसे इज्तनाब किया जाना चाहिए। सदका देते वक्त भी इस तरह का सदका ख़ास तौर पर देते वक्त, क्योंकि ये 10 रुपए के सदक़े से माहिरीन यही कहते हैं कि इंतहाई ज़्यादा अहम काम नहीं हो सकता। ये सदका बेहतरीन यही है कि छोटे जानवरों की, परिंदों की ज़िंदगियाँ बचाई जाएँ। इसके साथ ही प्रोग्राम ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़। भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।